صاحب بنا لیندے سی ڈر گیا میں بھی چلیا اوپن آئی صاحب آپ موجود ہیں؟ بٹ صاحب وہ قرآن دی آیت آپ بنائی سا جی اوپن آئی صاحب آپ موجود ہیں؟ بٹ صاحب میں پوچھ رہا قرآن دی آیت آپ بھی بنائی سا جی اوپن ابو بکر صاحب آپ سے بات نہیں ہو رہی ابھی موضوع بھی وہ نہیں ہے ٹھیک ہے نہیں موضوع نہیں ہے لیکن میرے ساتھ وہ پینڈنگ ہے نا موضوع آپ نے کہا تھا میں قرآن کی آیت وہ بنا کے لاؤں گا نہیں آپ نے جو بد زبانی کی ہے اس کے لیے جو ہے نا وہ کب میں نے بدزبانی کی ہے مجھے اس کا ثبوت دیں میں آپ کو 10,000 یورو انعام دوں گا اگر میں نے آپ کے ساتھ بدزبانی کی ہے تو ہاں ہاں میں دیتا ہوں آج بھی بتاؤں گا آپ کو یار آپ منہ پہ بیٹھ کے جھوٹ بول دیتے ہیں یار ابھی صاحب ایسا نہ کیا کریں پلیز اوپن آئی صاحب میرے پاس آپ کی ریکارڈنگ ہے کہ آپ نے کہا میں قرآن سے ڈھونڈ کے لاؤں گا آیت بھائی تو میں بھی سنا دیتا ہوں آپ کو ریکارڈنگ یار 1974 پہ بات ہو رہی تھی میں کہہ رہا ہوں آپ نے میرے اوپر بہتان لگایا ہے کہ میں بدزبانی میں نے کی ہے آپ کے ساتھ اس کا آپ ثبوت دے دیں ہے نا بدتمیز ہے آپ سب کو پتا ہے میں ٹھیک ہے آپ کی ریکارڈنگ یہاں پہ ابھی چلا دیتا ہوں آپ نے کہا کہ قرآن میں آیت موجود ہے میں آپ ڈھونڈ چلا کے رہے لاؤں گا 1974 میں بات ہو رہی ہے ابھی ان سے قرآن پہ بات جھوٹ بولتے ہیں آپ ہاں یعنی کہ اللہ کے اوپر بھی آپ جھوٹ بول دیتے ہیں اللہ گنگا ہے دیکھیں نا یہ کس طرح کی باتیں آپ کرتے ہیں بٹ صاحب بدتمیز ہیں آپ بد تہذیب ہیں ٹھیک ہے میں اگر نے آپ کوئی بدتمیزی نہیں کی میں تو بٹ صاحب بٹ صاحب بٹ صاحب کہہ رہا آپ شاتم جی ہوں آپ نے ابھی اللہ تعالیٰ کی شاخت کی ہے گنگا کہا ہے آپ نے آپ شاتم آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں بولتا آپ نے اللہ کو بت بنایا ہوا ہے اس سے بھائی بڑی کس نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں بولتا کس نے کہا ہے کہاں لکھا ہوا آپ کہتے ہیں آپ اس کا ثبوت دیں اور 5,000 یورو مجھ سے انعام لیں چلے ٹھیک ہے اچھا آپ ٹھیک بھائی ہے ایک جھوٹے انسان ہے اپنی طرف سے جھوٹ بولتے ہیں لوگوں پہ بھی قرآن پہ بھی حدیث پہ بھی اللہ پہ بھی جھوٹ بولتے ہیں آپ یار جا کے بھائی اور جا کے اپنی براڈ پہ جو بھائی آپ ثبوت دیں کس نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ گنگا ہے کس نے کہا ہے مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے اس کا حوالہ میں دے سکتا ہوں آپ کو یہ تو ہندی مرزا صاحب نے کی ہے اللہ کو گنگا کا ہے کھولو مائک اوپن صاحب آپ نے بھی اپنی براڈ پر بدماشوں کو جگہ دینی شروع کر دی ہے بتائیں مجھے ہیلو یعنی کہ ایک بندہ بات نہیں کر رہا اس سے بندہ ٹھیک ہے نا وہ بدماشی ہے نا کہ میری بدماشی تم اس سے نہیں تو وہ راجا صاحب آپ سے بات نہیں کر رہے آپ ان کو کہہ رہے میں نے کرنی ہے میں نے کرنی ہے تو آپ بات میں نے ان کو راجا صاحب نے آپ سے بات نہیں کرنی آپ نے زبردستی کرنی آپ بدماش ہیں انہوں نے ہاں جی انہوں نے کہا تھا بار بار کہا ہے کہ میں نے بھائی 1974 ٹھیک ہے ابو بکر بھائی نہیں کریں گے آپ سے بٹ صاحب آپ ٹھنڈے ہو کے ریلیکس ہو کے پانی شانی پیئیں ریلیکس ہو مہربانی ٹھیک جی اوپن آئی صاحب موجود ہیں آپ بٹ صاحب میں کوئی بات پوچھ لوں آپ سے میں نے آپ سے بات کرنی ہے میں نے کہا چلے
कल को पब्लिश होती है वीडियो ऑडियो फॉर्म में, और वो बिल्कुल हवाले तो बगैर गल नहीं ना करनी चाहिए। देखो जो बंदा ऐसी गल करे जी गलत होवे, हवाले तो बगैर होवे, तो फिर वो बेइंसाफी हो जाती है ना। तारीख नाल इंसाफ यही है कि तुसी अथेंटिक गल करो, जी लिखी पढ़ी गल होवे तो हवाले नाल करनी चाहिए। बस यही तो मसला है ना, यही मसला वो आंदे ने किताबां इन्हां चुकियां होंदियां ने हवालियां दी। इन्हां ने किताबां 'च गल्लां लिखियां क्यों ने? मिसाल के तौर पर ਉਹ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਰੀਖਦਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਹਨ ਨੇ, YouTube ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰੀਖ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲਿਖੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਡਿਸਟੋਰਟ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। बिल्कुल ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲਤ ਲਿਖੀ ਹੈ, भाई ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲਤ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। और किताब का नाम रखा हुआ अंदर की बात। अंदर की कहानी। आ जाओ फिर खैर नाल चलिए लामा साहब, अपनी बराड़ी ला लो किधरे चल के। बस मैं ना 5-10 मिनट थोड़ा बिजी हाँ, तो फिर इंशाल्लाह मैं आना, फिर अपनी बरात खोल लेंगे अगर नहीं कोई बंदा अंदर। आहो सानू कोई नहीं जे बर्दाश्त करता। अगे मेरे ते भी लामा आया हुंदा सी कि भई अबू बकर नाल गल नहीं करनी है, गल बाद ही करदा है ते हवाला पहले खोलदा है। मैं वो आदत छड्डी है, मैं हुण हवाला नहीं खोलदा। हुण मेरे ते इल्जाम लगदा है कि भई ए बद जुबान है। हुण मैं दसो किहड़े पासे जावां? बस ये आखिरी हरबा हुंदा जदों बंदा मान ले के ये बस हुंदा है, तो फिर नहीं काम आप ला दिंदा। हुण ये काफी अरसा हो गया, मैं छड़ दित्ते है बिल्कुल, मैं हवाला पढ़दा ही कोई नहीं। आबद साहब बुलाया ते सी अदनान साहब नु, आ तुसी गए हो तां ही तो आउंदे नहीं पे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम आबद साहब पहला ते आउणा सी ना अदनान साहब ने, तुसी पहला आ गए हो। सर कोई नहीं, मैं थल्ले उतर जांदा, कोई मसला नहीं। अगे बंदा आउंदा कोई नहीं पिया, तू खराब है, ए काम खराब है। होर हवालियां वाले आ गए। देखो कई गल्लां ऐसियां होंदियां ने कि उन्हां गल्लां नूं जिस वेले बंदा देखदा है तो उन्हां नूं अवॉइड नहीं किया जा सकता। ला महल्ला तस्लीम करना पैंदा है कि उत्थे गड़बड़ की गई उन्हां गल्लां दे विच। अगर बंदे ने सिर्फ लोकां नूं अपने पढ़न वालियां नूं गुमराही करना होवे तो फिर उहदा फायदा की है। हुण जिहड़ी मिर्ज़ा साहब ने गल लिखी है कि इस उम्मत में बाज़ अफराद ऐसे हैं जिन्होंने बावजूद उम्मती होने के नबी होने का खिताब पाया है। तुसीं दसो भी ये गल कोई अज़म होने वाली है? तौबा अस्तगफिरुल्लाह तौबा। फिर अगों सोने ते सुहागा ये वे कि बाज़ अफराद तू मुराद या नतीजा उहदा ये कढ़िया है कि मिर्ज़ा साहब ने जिथे फरमाया बाज़ अफराद, उहदे तो मुराद मिर्ज़ा साहब ने, बाज़ अफराद तो मुराद एक बंदा है। वाह वो पेश कोई एक दी है ना आंदे ने। भाई ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦ ਭਾਈ ਨੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਬੜੇ ਤਰੀਹੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ? ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆ ਕੇ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਫ फरमाई है बाज की? हाँ, बाज़ अफराद से मुराद मतलब है साफ पता लगता है कि एक गलती नूं दुरुस्त करने वास्ते 100 गलतियां कीतियां जा रही हैं। जिस तरह साडे कहंदे ने एक झूठ नूं छुपाउण वास्ते 100 झूठ बोलिया जांदा है, एक झूठ नूं छुपाउण वास्ते 100 झूठ बोलिया जांदा है।
ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਨੇ ਕੱਢੇ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਅਫਰਾਦ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਰਅਕਸ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਉਮਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਅਬਦੁਲ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਐਵੇਂ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਅਕਲ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਅਕਲੀ ਹੈ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੂਰਾ ਤਹਰੀਮ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੂਮਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮਰੀਮ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਮੂਮਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਰੀਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਲੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਮੂਮਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਮਰੀਮ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਉਮਤ 'ਚ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਉਸ ਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸਦਾਕ, ਸੂਰਾ ਤਹਰੀਮ ਦੀ ਉਸ ਆਇਤ ਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਮਿਸਦਾਕ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਮਰੀਮ ਰੱਖਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਘੋਲ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਗਰਮਾਲਾ ਮਾਰਨ ਤੇ ਉਹ ਵੱਜੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਕਦੇ ਇੱਧਰੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੋ ਜਾਏ ਸੀਮੈਂਟ ਤੇ ਕਦੇ ਉੱਧਰੋਂ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਲਝਣ ਦਾ ਬਾਇਸ ਨੇ। ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖਰੀ ਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਸਲੇ ਨਾ ਬਣ ਜੀ। ਦਨਾਨ ਮਤਲਬ ਸਾਹਿਬ अस्सलाम वालेकुम जनाब। ਲੇਕਿਨ ਅਮਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਵੀਲ ਦੇ ਕਾਇਲ ਹੋ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ मोहतरम ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿੰਨੀ ਨੇ। मिर्जा साहब का एक इल्हाम है, आफत दयारा महलोहा व मकामोहा। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਫਤ ਦੇ ਐਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੂਮਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਰਹੀ ਅਬੂ ਬਕਰ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਤ ਦੇ ਉਹ ਐਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਫੀਅਤ ਬਖੈਰੋ ਆਫੀਅਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਚਾਨਾ ਜਾਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਐਨ ਆਲੇ ਆਫਤ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਲਫ ਆਲੇ ਆਫਤ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਬਾਹੀ ਬਰਬਾਦੀ। ਵਾਹ ਵੈਸੇ ਹੋਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਬਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਵੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਮੇਰੇ ਹਲੇ ट्रेन सफर करते ने पे थे वो आ जंदी चाह पानी। डॉक्टर साहब वादा करके गए ने वापस आ रहे हैं। चल आपके मैंने कहा आप क्या हाल चाल है आपके? अदनान भाई आ गए ने, आप देख लेंगे। जी बड़ा साहब सलाम अलैकुम, क्या हाल चाल है आपके? जी अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब, कैसे? आप अभी तक ट्रेन नहीं हुए, मुजाहिद नहीं बने अभी तक के? आप तो वही मॉडरेटर ही बन के बैठे हैं ट्विटर की तरह। नहीं आप में सलाहियत पैदा हुई अभी? मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ देखो ना दाखला ले लिया ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ट्रेनिंग करनी जनाब। नहीं वहाँ पे तो आप हम सियासी पैसों में तो हिस्सा ले लेते थे, अब तो इधर तो आपने बिल्कुल ही हाथ अपने छोड़ दिए हैं। बस पॉलिटिक्स में इधर भी पॉलिटिक्स ही शायद कर रहे हैं आप? हाँ बस देखो ना मेरा खेल तो पॉलिटिक्स है। नहीं ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਬ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ WhatsApp ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁਨਾਜ਼ਾ ਸ਼ਵਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ ਕਦੀ। नहीं देखो ना मैं वही करना जो मैंने आंदा। बस ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਣਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਇਲਾ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ नासियाँ हैं। बाकी देखिए कंट्राडिक्शंस हमेशा से जो लोग मुखालिफ होते हैं वो निकालते रहते हैं लिटरेचर में से। अब क्रिश्चियंस की ये ब्रॉड अहमदियों से खाली हो रही थी, इसी तरह क्रिश्चियंस की ब्रॉड मुसलमानों से खाली होती है। उसकी वजह ये कि वो हर तहरीर को अपनी नज़र से देखते हैं और उसमें उनको हर जगह पर कंट्राडिक्शन ही दिखाई देती है।
اور وہ ایسی کنٹرڈکشن ہوتی ہے جس کا مین مدعے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، مین جو اختلافات ہیں اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، اور ان کے پاس اپنے پاس کیا ہے وہ پیش نہیں کرتے، وہ نہ کرسچن اپنی تعلیم کو پیش کرتے ہیں، نہ یہ مسلمان اپنی تعلیم کو پیش کرتے ہیں۔ محض اعتراض پہ گزارا کرنے والے تو ہمیشہ جو ہوتے ہیں وہ غلطی پہ ہوتے ہیں، ان کو درستی کرتے ہیں۔ عدنان صاحب ہم آپ کی نظر سے دیکھ لیتے ہیں، وعلیکم السلام۔ ہم آپ کی نظر سے دیکھ لیتے ہیں، آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کی نظر میں یہ 20 فروری 1886 کو جو مرزا صاحب نے کہا تھا کہ مجھے خدا نے کہا ہے تیرا گھر برکت سے بھر دے گا، اپنی نعمتیں تجھ پر پوری کروں گا، اور خواتین مبارکہ سے جن میں سے تو بعض کو اس کے بعد پائے گا تیری نسل بہت ہوگی، وہ خواتین مبارکہ کون سی ہیں؟ دیکھیں کیا بات پوری ہوئی یا نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، ان کے پاس کا پاک خاتون آئیں یا نہیں آئیں، یا ان کے پاس موجود تھی یا نہیں موجود تھی، یا ان کا خاندان ابھی تک اس میں بھی ہزاروں لاکھوں لوگ بن چکے ہیں، اتنا پھیل چکے ہیں، ان کے جو دیگر بھائی تھے ان کی اولاد، دیگر خاندان کے جو افراد تھے ان کی آگے تو اولادیں چلی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، صرف انہی کی اولاد آگے چلی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہر لحاظ سے، اور وہ بھی ایسی اولاد کہ جو اپنے اندر نشان رکھتی ہے، اور وہ ایک لگتا ہے کہ وہ انبیاء کے ہیں وارث ہیں، تو اس طرح کی یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے پیش گوئی پوری کی ہے۔ لیکن آپ اپنی نظر سے دیکھیں گے، آپ اس کا کوئی پہلو پکڑ لیں گے، مثلا نہیں، میں اپنی نظر سے نہیں دیکھتا، میں آپ کی نظر سے دیکھوں گا یا مرزا صاحب کی نظر سے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہر صدی کے سر پہ مجدد آنا ہے جو طاہر طارق صاحب پیش کرتے رہتے ہیں حدیث، اب یہ تو پیش گوئی ہے، پوری ہونی چاہیے، آپ بتا دیں مجھے ہر صدی کے سر پہ، اور اس پہ ساری جو امت ہے اس کا اجماع دکھا دیں کس کو مجدد مانتے ہیں اور کس کو نہیں مانتے، اور بتائیں یہ کہ پیش گوئی کیسے پوری ہوئی۔ یہ پیش گوئی ہاں اس پیش گوئی کی طرف تو بعد میں دیکھیں گے کہ جو نہیں، یہی بات ہوتی ہے نا کہ آپ اپنی پیش گوئیوں پہ سن تو لینا، اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور ان کو ہی آپ کو سمجھ آ جاتی ہے ہاں ہماری پیش گوئی، کہ آپ نبی پاک کو سچا مانتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو آپ سچا مانتے ہوتے ہیں ان کی آپ کو اس میں اس طرح کی کجیاں نظر نہیں آیا کرتی، بھائی سن ٹھیک ہے، تو لیں، جو سن تو لیں۔ اختلاف کرنے والے ہوتے ہیں وہ ہزار اس میں سے چیخیں چیزیں نکال کے آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں، پھر آپ کو ان کا جواب اجمالی دینا پڑتا ہے، بے نہیں کبھی بھی پیش گوئیوں کا۔ اچھا، اس کا کیا اجمالی جواب آپ نے دیا مجھے ابھی تک؟ میں نے بتایا بھائی خاندان ان کی واقعی برکت والا خاندان ہے ان کا، اور ایک نسل آج تک ان کی چل رہی ہے، اور نسل عام خاندانوں کی نسبت ان کی بہت زیادہ پھیلی ہے، پوری اچھا، ان دنیا کی میں نسل، پھیلی ہوئی ہے، اچھا، اور مقام و مرتبہ اور علم و معرفت میں عام لوگوں سے وہ کافی بڑھ کر ہیں۔ لیکن مرزا صاحب تو کہتے ہیں سرما چشم آریہ میں صفحہ 318 جلد 2 ہے کہ اس عاجز کو ایک جگہ پر، جہاں پر اس عاجز نے 20 فروری 1886 کے اشتہار میں یہ پیش گوئی خدا تعالیٰ کی طرف سے بیان کی تھی کہ اس نے مجھے بشارت دی ہے کہ بعض برکت عورتیں اس اشتہار کے بعد بھی تیرے نکاح میں آئیں گی۔ نکاح میں کون سی آئی ہے 1886 20 فروری کے بعد؟ یہ تحریر آپ نے پڑھی کیا لکھا ہوا اس میں؟ میں پوری تحریر پڑھ کے سنا رہا ہوں، صفحہ 318 روحانی خزائن کی دوسری جلد، سرما چشم آریہ کتاب، کہ اس عاجز نے 20 فروری 1886 کے اشتہار میں یہ پیش گوئی خدائے تعالیٰ کی طرف سے بیان کی تھی کہ اس نے مجھے بشارت دی ہے کہ بعض برکت عورتیں اس اشتہار کے بعد بھی تیرے نکاح میں آئیں گی اور ان سے اولاد پیدا ہوگی۔ اس پیش گوئی پر منشی صاحب فرماتے ہیں، منشی رمضان کی بات ہو رہی ہے، کہ الہام کئی قسم کا ہوتا ہے، نیکوں کو نیک باتوں کا اور زانیوں کو عورتوں کا۔ یہ پوری بات ہے جی۔ نہیں، آگے مرزا صاحب نے کیا لکھا ہوا اس کے؟ ہم اس جگہ کچھ لکھنا نہیں، آگے کریش ہو جائے گی واپس آپ اپنائی صاحب۔ ہم مرزا صاحب نے اس سے اگلا فقرہ یہ لکھا ہو کہ ہم اس جگہ کچھ لکھنا نہیں چاہتے۔ ناظرین منشی صاحب کی تہذیب کا آپ اندازہ لگا لیں، بس ایسے ہی لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری تحریر ہی انہی کی ہے جو ان کے مخالف ہے، تو اس پہ تو مرزا صاحب نے اپنا کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دی تھی نا۔ یہ ان کے مخالف کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ مرزا صاحب اپنی سٹیٹمنٹ بتا رہے ہیں کہ میں نے، اس عاجز نے 20 فروری 1886 کے اشتہار میں یہ پیش گوئی خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ بیان کی تھی کہ اس نے مجھے بشارت دی ہے کہ بعض برکت عورتیں اس اشتہار کے بعد بھی تیرے نکاح میں آئیں گی اور ان سے اولاد پیدا ہوگی،
اس پیش گوئی کے بارے میں آگے وہ مخالف نے بات کہی ہے کہ زانیوں کو عورتوں کے الہام ہوتے، وہ تو مخالف، اس کو چھوڑیں. یہ پیش گوئی جو مرزا صاحب نے کی تھی کہ 20 فروری 1886 کے بعد کئی عورتیں، بابرکت عورتیں ان کے نکاح میں آئیں گی. 20 فروری 1886 کے بعد مرزا صاحب کے نکاح میں کوئی عورت آئی ہے؟ اسی طرح ہی ہوتا ہے نا، جس طرح سے مرزدین والی حدیث ہے نا کہ آپ کو اس کو پہلو تمام پہ پوری نہیں آپ کر سکتے، اس تحریر کو سمجھنا پڑے گا، ٹھیک ہے. اور نبی کی زندگی میں اس کو سمجھیں، اس کو سمجھیں، سمجھ کے سمجھائیں. جس طرح سے آپ اس کو سمجھ جائیں گے نا، اس کو بھی اسی طرح سے سمجھیں گے کہ لازم نہیں ہوتا کہ وہ جو پیش گوئی کی گئی ہے اس کی نبی کی ذات تک وہ محدود ہو، ٹھیک ہے. اس کی اولاد کی زندگی میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ زیادہ ان کے نکاح ہوں، ٹھیک ہے. وہ تو بڑا کچھ سکتا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں اسی طرح ان چیزوں کو سمجھا جاتا ہے کہ ایسا واقعتاً ہوا یا نہیں ہوا. عدنان صاحب کی آگے اولاد کا برکت ہوئی، اولاد کے بارے میں تو پیش گوئی نہیں ہے نا. ان کی زندگی اولاد کے بارے میں لکھا ہونا ضروری نہیں ہوتا محترم. لازم نہیں ہوتا کہ جس شخص کے بارے کا ادھر ظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ تیرے نکاح میں آئیں گی، وہ لازم ہے کہ اسی شخص کے نکاح میں رہے. ہر پیش گوئی میں کوئی نہ کوئی امتحان کا پہلو ضرور موجود ہوتا ہے. کوئی بھی پیش گوئی ایسی نہیں ہوتی جو امتحان سے خالی ہو. عدنان مطلوب صاحب میں یہ پوچھ رہا ہوں، امتحان کا جو ہوتا ہے فائدہ منکرین لگاتے ہیں. بھائی میں منکر کی بات ہی نہیں پیش کر رہا، میں ملحد کی یہی بات. بتا رہا ہوں نا بھائی، ان کے آگے اولاد ہوئی، نیک بابرکت اولاد ہوئی اور نیک نسل ان کی آگے چلی. تم تو لینا، اب مجھے بھی موقع تو دیں، موقع اور تو ان کی دیں. اس نسل کی نکاح میں ہاں ایک سے زیادہ عورتیں نیک. ہاں ان کی نسل میں ان کی اولاد کی بیٹوں کی بہویں، ان کی بہویں وہ تو ہوتی ہیں. لیکن مرزا صاحب کا اس الہام کے بارے میں منکر کی بات نہیں پیش کر رہا، ملہم کی بات پیش کر رہا ہوں. ملہم کہہ رہا ہے کہ خدا نے مجھے بشارت دی ہے کہ بعض بابرکت عورتیں اس اشتہار کے بعد بھی تیرے نکاح میں آئیں گی. یہ منکر کہہ رہا ہے کہ ملہم خود کہہ رہا ہے؟ تو وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے ہاتھ میں ان کے کنگن دیے گئے ہیں. بھائی نبی پاک کی بات کرنے سے پہلے عدنان صاحب، کس طرح کے محلوں کی چابیاں نبی عدنان صاحب تو یہ باتیں ان کی زندگی میں تو پوری نہیں ہوئی نا. بھائی پھر پہلے اصول طے کر لو. ہوتی ہیں ان کو اسی طرح سمجھا جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ ایک ہم نے مرزا صاحب کو منہاج نبوت ہم نبی مانتے ہیں ان کو، جس طرح سے دیگر انبیاء کی پیش گوئیاں پوری ہوئی ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے گفتگو کرنی ہے. یعنی آپ نے یہ مانا ہے کہ سارے ظاہر پہ حمل کر کے ختم کر دیں گے. عدنان صاحب تو تمام انبیاء کی جو پیش گوئی ہیں اس میں سے ایسے پہلو نکال کے ان کو ظاہر پہ عمل کر کے ان کو کہا جا سکتا ہے یعنی سارے نبیوں کی جھوٹی نکلی ہیں پیش گوئیاں. مگر اس نظر سے جو نظر آپ نے رکھی ہوئی ہے، کون سی نظر؟ میں کہتا ہوں میری سن لیں بات، میری جو بے انصافی سنیں میری بات. کی میری نظر مجھ سے پوچھے نا عدنان مطلوب صاحب، میری نظر مجھ سے پوچھیں، میں بتاتا ہوں میری نظر کیا ہے. میری نظر یہ ہے کہ ملہم الہام بیان کرے، اس کے بعد اس کی خود تفسیر کرے. اگر اس کی بات جھوٹی نکلتی ہے وہ ملہم شیطان کی طرف سے یا خدا کی طرف سے نہیں ہے. لاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی پیش گوئی کی جس کی خود صراحت کے ساتھ بیان کرنے کے بعد اس کی تفسیر بھی کر دی کہ اس کا یہ مطلب ہوگا، وہ جھوٹی نکلی ہے. لاؤ ایک پیش کرو. آپ کی خود ساختہ جو قوانین ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں جو مرزا صاحب پر اپلائی کر رہا ہوں وہی اپلائی کروں گا. آپ نے من مرضی سے جو بھی اصول مرتب کر لیں گے ان کی حیثیت ہمارے سامنے. تو آپ نے کون سا، تو آپ نے یہ کہاں سے لیا؟ میں تو یہی کہا ہے کہ نہیں ہے کہ تمام جو پیش گوئیاں جو بظاہر اس نبی سے منسوخ کی جا رہی ہیں اس نبی کے ہاتھ سے ہی وہ پوری ہوں. او بھائی عدنان مطلوب صاحب، میں یہ نہیں کہہ رہا نبی کے ہاتھ سے پوری ہوں، اور اس کی جماعت کے ذریعے سے وہ پیش. عدنان صاحب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جو مرضی کہہ رہے ہیں، میں بات تو کرنے دیں، میرے حال میں بات تو کرنے دیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مرزا صاحب کے ہاتھ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مرزا صاحب خود اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اس پیش گوئی کا مطلب یہ ہے کہ بعض بابرکت عورتوں سے میرا نکاح ہوگا. خود پہلے الہام پیش کیا ہے، الہام کی خود تفسیر پیش کی ہے. اور اگلی بات بھی سن لیں، یہ میرا اصول ہے کہ یہ ملہم کا اپنا اصول ہے. سننا ذرا ایک منٹ اصول اپنے ملہم کا. وہ کہتے ہیں مرزا صاحب کہ اصل بات یہ ہے کہ کسی الہام کے وہ معنی ٹھیک ہوتے ہیں کہ ملہم آپ بیان کرے، عدنان مطلوب نہ بیان کرے، ملہم آپ بیان کرے. اور ملہم کے بیان کردہ معنوں پر کسی اور کی تشریح، عدنان مطلوب کی تشریح، راجہ تعال منان کی تشریح اور تفسیر ہرگز فوقیت نہیں رکھتی، کیونکہ
मुल्हिम अपने इल्हाम से अंदरूनी वाकफियत रखता है। ये मिर्जा साहब अपने इल्हाम से अंदरूनी वाकफियत रखने की बिना पर बता रहे हैं कि बाज बाबरकत औरतों से मेरा निकाह होगा आज के इस इश्तिहार के बाद। कौन सी औरत से निकाह हुआ है मिर्जा साहब का 20 फरवरी 1886 के बाद? नहीं, वो तो अल्फाज दोहरा दिए उन्होंने इल्हाम के, ठीक है, और इल्हाम के अल्फाज अगर उन्होंने कोई भी उसके माने मफहूम किए, लेकिन ये लाजिम नहीं होता कि उस नबी के हाथ से ही वो काम होना है या उसके ही जिंदगी में वो बात आप इसके बजाय ये ऐन मुमकिन है जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के साथ भाई हुआ, नबी पाक जैसे सल्लल्लाहु अलैहि दीगर वसल्लम अंबिया के साथ हुआ कि किसी नबी ने नहीं ये किया, किसी नबी के साथ ये नहीं हुआ। जो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उसी नबी के हाथ से पूरी होनी है, उसी के हाथ से सारे इस्लाम किस नबी ने ये बात कही? तो इस्लाम में तमाम अभियान पे गालिब आ जाना है। अदनान साहब, ये लाजिम नहीं है कि बज़ाहिर जो उसकी जात के साथ, इसीलिए तो आपके बंदे जाकर दीवारों पर बैठकर सुनते हैं ना, अंदर सामने नहीं आते। किस नबी ने सुनो, अब मुझे बात तो करने देना अदनान साहब, बात करने दे मुझे। किस नबी ने इल्हाम पेश किया, उसकी तफसीर बयान की कि इस इल्हाम का ये मानी है और उसके बरक्स नतीजा निकला, वो बता दे मुझे, वो नबी बता दें और उसकी वो पेश भी बता दें। देखिए 1,23,000 अंबिया की किताबें ले आए, 83 मेरे सामने तमाम। तो फिर अगर आपके पास हैं, तो मैं आपको निकाल के दिखा दूंगा कि उनकी जिंदगी के साथ क्या क्या मामलात हुए हैं। ठीक हो गया, ठीक मैंने आपको ये बात बता दी है कि बज़ाहिर जो अंबिया के साथ ऐसा लगता था कि ये बात उसके हाथ से पूरी होनी है, ऐसा नहीं हुआ। उसकी जिंदगी के बाद वो मामलात पूरी हुए, उसके जमात के हाथ से पूरे हुए या उसकी नस्ल से बातें पूरी हुई। ठीक है, ठीक है, मैं बेशुमार मसाले, एक मिसाल नहीं है। यही बात यहाँ पर सादिक आती। आप इस पे अगर नहीं समझते या इसे मानने से मुनकिर हैं तो उस पे मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने आपको एक असूली बात बता दी कि ये ऐन मुमकिन है कि जो बज़ाहिर आपको लगता है कि ये बात लाजमन उस नबी के हाथ से ही पूरा होना यहाँ पर ज़ाहिरी मानों में लगता है, लेकिन ऐसा ना हो। ठीक है, तो मैंने आपको ये बात वजाहत दे दी है। अगर वजाहत के बाद आप अपनी बात पे इसरार करेंगे तो मेरा मौक़िफ़ तो बदल नहीं जाएगा। ठीक है, ठीक मैंने तो मुझे भी करनी है ना। जो जवाब आपको चाहिए था वो दे दिया आपको। आप किसी मुनकिर की तरह कहेंगे नहीं मुझे नहीं समझ आया, तो मैं आपको कोई नया पानी कोई पिला दूंगा जिससे आपकी जिंदगी तसल्ली हो जाएगी कोई। अच्छा, ऐसे अगर आप कहेंगे ना कि आप एक मुनकर की तरह, मैं आपको कहूंगा आप किसी फरेबी झूठे की तरह, तो इसका क्या नतीजा निकलेगा? इस तरह की बात ना करें। ये मुनकर शुनकर झूठा मैंने एक अल्फाज ना इस्तेमाल करें ना, तो इसमें इसरार करने की आपको क्या जरूरत है? मेरी बात आप ये नहीं हो सकता कि आप एक मुखालफत रखते हुए ये कहें कि जो मैंने मिर्जा साहब को समझा है वो दुरुस्त समझा है। मैं नहीं भाई, अपनी कोई बात ही नहीं कर रहा है, और जो मैं वजाहतें आपको दे रहा हूँ उसको आप अपनी पाँव के नोक पे फेंक रहे हैं। अदनान साहब, वजाहत समझी है मिर्जा साहब की, वही हतमी है और मैं ही मिर्जा साहब का कामिल पेशरो हूँ और मैं ही बताऊंगा मिर्जा साहब ने असल में बातें की क्या है। हाँ, ये बिल्कुल गलत बात है। इस तरह से तमाम अब मुनकिरीन को ये इख्तियार दे देंगे, जो भी तफसीर वो कुरान की कर लें, जो भी तफसीर वो हदीस की कर लें, तो वो हक बचानी गए इस बात में और उन्हीं की बात तस्लीम की जाएगी और उसके मुंह जो मानने वाले हैं उनकी मुंह पे टेपे लगा दी जाएगी। अब मुझे भी बोलना है ना, मैंने आप रुक जाए ना, रुक भी जाए ना, सांस भी ले। कहना चाहिए ठीक है, ये जवाब आपका ठीक है, मेरे पास कोई और बात है, मैं वो और बात कर लेता हूँ। अगर कोई और बात है आपके पास तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन इस बात में जब मैंने आपको जवाब दे दिया है तो आपको उस पर होना चाहिए ठीक है, बात कोई बात नहीं है। अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग है आपकी तो कोई बात मुखालते वाली बात नहीं है। चलें, ठीक। अब ये आपने जो दुनिया का आखिरी सच बयान कर दिया है, इसकी बुनियाद ये है कि नबियों के साथ ऐसा होता है कि नबी खुद इल्हाम बयान करें, वही बयान करें, फिर खुद उसकी वजाहत करें कि इस इल्हाम का ये मतलब है, उसके बावजूद वो पूरी ना हो। आपकी नजर में ऐसा नबियों के साथ होता है? मैंने कहा किस नबी के साथ होता है? आपने कहा भी 1,24,000 नबियों की मुझे फहरिस्त ला दो तो मैं किसी से निकाल के दिखा दूंगा। यानी आपके पास बुनियाद नहीं है, सबूत नहीं है, बगैर सबूत के एक दावा है कि अगर आप सारे नबियों की मेरे सामने पेशगोइयां और जिंदगियां ला के दिखा दो, हो सकता है मैं निकाल लूं। अगर आपके पास उसका सबूत नहीं है, बुनियाद नहीं है, तो आपने ये दावा क्यों किया कि सच्चा नबी ऐसा कर सकता है कि खुद इल्हाम बयान करे, खुद उसकी तफसीर करे, उसके बावजूद उसकी बात झूठी निकले? आप उसको नबी मानते हैं? हम तो ऐसे शख्स को नबी तो दरकिनार
एक परले दर्जे का झूठा फरेबी मक्कार मानते हैं जो बंदा ये फिर खुद आपको दावा करे। तमाम अंबिया को मानना पड़ेगा इस रसूल के तहत। भाई किस नबी ने ये भाई बता रहा है उस मसाल तो दे दो ना। तफसीर किया करते थे अदनान हजरत साहब, यूनुस का गांव को छोड़ जाना, अदनान साहब आपकी पूरी बात मैंने सुनी हजरत है। नूह का अपने बेटे को समझना अपनी बात कि वो तो मेरे अहले नूह बैत में अलैहिस्सलाम की से भी है, सुन लेते हैं। इन सबको फिर आपको वही फतवा लगाना पड़ेगा जो हाँ, आप दिखाएं ना, बता रहे हैं। दिखाएं कहाँ? जो कहाँ? बात आप ये मिर्जा कहाँ साहब नूह को महसूस अलैहिस्सलाम कर ने रहे हैं, पेशगोई ये की सारी है, कहाँ बातें उसकी आपको उनके साथ वजाहत लगानी है? पड़ेगी, ठीक है? अदनान साहब नूह हजरत नूह अलैहिस्सलाम की पेशगोई अपने बेटे को समझते रहे। करें। इल्हाम का उन्होंने क्या मतलब लिया? क्या? उस इल्हाम का क्या मतलब लिया? लाओ। उनका बेटा उनके अहले बैत में है, लेकिन हकीकत में वो नहीं था। अदनान तो ये साहब, नूह अलैहिस्सलाम की पेशगोई अलैहिस्सलाम पर भी लगेगा, ठीक है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर भी लगेगा, जो वो गांव छोड़कर चले गए थे। और क्यों झूठ बोल रहे हैं नबियों पर? और क्यों सच्चे इल्हाम को भी समझा उन्होंने, वजाहत भी क्यों की, झूठ बोल रहे हैं? उस पे नबियों अमल पर भी किया, तोहमतें लगा रहे लेकिन वो हैं। बात गलत आपके साबित पास- हो गई, ओ ठीक भाई, है? मेरी- तो ये जो फतवे आप मिर्जा साहब पे लगाते हैं, अदनान साहब, वो मिर्जा साहब की बात तमाम झूठी है। अंबिया पर लगेंगे। अगर ये तमाम साफ अंबिया झूठी के आप निकली गुस्ताख है, मैं अगली ठहरेंगे। बात पेश करता हूं, तमाम चीखें ना मारें। अंबिया को आप गलत करार देंगे। ओ चीखें ना मारो, चीखें ना मारो, मैं अगली बात पेश कर देता हूं। ना दीन के साथ इतना बड़ा जुल्म करो। अदनान साहब, अगर आपके पास जो मिनहाजे नबुव्वत है मिर्जा साहब को परखोगे तो यकीनन तुम कसम खा भाई ना चीखें मारो, अदनान साहब ना चीखें मारो, कह दो मिर्जा साहब की ये बात झूठी निकली है। ये जो साहब है, ये अदनान साहब को तो चुप कराए, हमें कोई बात तो समझ आए किसी की। अदनान साहब आपको क्या हुआ है? कोई आपको मेंटली प्रॉब्लम है आपको? बारी बारी बोले क्या? पहले भी आपने शोर डाला, इतना मुसलसल बोलते रहे हैं ना, आपकी बात में कोई वजन है, शोर डाल रहे हैं। वड़ाई साहब आपकी वड़ाई साहब ये और नहीं बहुत 2-4 बंदे नहीं यार, आप तो पागल लग रहे हैं यार। मतलब आपने बात आपने नहीं अच्छा खामो किसने बात की थी? अच्छा भाई वो झूठ बोल रहे हैं मेरे नबी के ऊपर। यार आपका कौन सा यार वो नबियों पर जो इतराज जाते हैं यार, वो नबी है कोई, वो उसको पहले इंसान साबित करो, फिर नबी की शोर ना करना, शोर ना करना। इतराज पड़ता है। अच्छा ऐसा पहले तो इतराज पड़ता है, यूनुस पे इतराज पड़ता है। कोई नहीं, झूठ बोलना है। कुरान पाक में ऐसा ही, कुरान पाक में ऐसा ही, कुरान पाक में ऐसा ही इल्म देकर भेजे। यार मिर्जा साहब ने तो झूठ बोले हैं, मिर्जा साहब के तो सारे झूठ है। यूनुस अलैहिस्सलाम का भाई माइक लगाने से कोई बात नहीं पूरी हो गया। बारी बारी बात करें भाई, बारी बारी बात करें। अदनान मतलूब साहब, अगर आपने हजरत नूह अलैहिस्सलाम का आपने दिया है, हवाला दिया है, तो आपसे जैसे अमर भाई पूछ रहे हैं कि नूह अलैहिस्सलाम ने पेशगोई की, फिर उसकी वजाहत की, और उसके बावजूद वो पेशगोई माज़अल्लाह गलत निकली है, तो आप उसका हवाला दे दें। सिंपल है ना बात? हाँ बिल्कुल, ये एक असूल है कि एक मुल्हिम खुद अपना इल्हाम पेश करता है, फिर उसकी वजाहत भी खुद करता है, उसके बावजूद उसकी बात झूठी निकलती है। कोई बंदा भी हो लाए मेरे सामने, मैं कहूंगा ये नबी नहीं कहलवा सकता, कोई भी इंसान ऐसा हो ही नहीं सकता। अल्लाह का सच्चा नबी और उसके बारे में उसने खुद इल्हाम पेश किया हो, खुद उसकी वजाहत की हो कि इसका ये नतीजा है, ये मतलब है, उसके बावजूद उसकी बात झूठी निकले। नबियों की बातें अगर झूठी निकलेंगी, उनको कौन नबी मानेगा? बिल्कुल, देखे ना अब अमर भाई, अभी नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर इन्होंने इतराज कर दिया और कह रहे हैं मेरे नबी पे झूठ बोल दिया, मेरे नबी पे झूठ बोल दिया। भाई आप नूह अलैहिस्सलाम पे झूठ बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नूह अलैहिस्सलाम ने ये हरकत की है माज़अल्लाह, तो आप उसका हवाला दे देना कि नूह अलैहिस्सलाम ने कहाँ ये पेशगोई की, फिर उसकी वजाहत की, और वो पूरी नहीं हुई। अदनान साहब ने इतना बड़ा झूठ बोला, कुरान पाक में दिखाएं कहाँ यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा और उनकी बात गलत साबित हुई हो। कुरान की कोई आयत पढ़े। तो गुजारिश ये है अदनान साहब, आप पहले तैयारी करके, आप मिर्जा साहब को बचाना चाहते हैं, वो बेचारे नहीं बच सकते, जितना मर्जी जोर लगाएं। अब आपने एक मिर्जा साहब को बचाने की खातिर अल्लाह के सच्चे नबियों के साथ कितना जुल्म कर रहे हैं। ये आप जालिम कौम है आप लोग। और फिर ये बात चले, दलाइल तो अपनी जगह है, वो आप अमर अजीज साहब ने आपकी बात तसल्ली से सुनी है। जब वो बोलने लगे आपने मुसलसल शोर, जो पॉकेट बुक में झूठ गलत मलत लिखा हुआ है, वो आप इधर की उधर जो है वो लगाना चाहते हैं, और आपका सांस भूला हुआ है। कम से कम कोई तमीज ही सीख रहे बात करने की।
यही वजह है कि ये मैं आया हूं तो वो सारे यहाँ से उतर कर नीचे दीवारों पर जाकर बैठ गए हैं, सुन रहे हैं सारे बाहर बैठकर, सामने आकर बात नहीं करते क्योंकि उनके पास इन बातों का जवाब ही है नहीं। मैंने एक भी लफ्ज़ मिर्ज़ा साहब के बारे में ना तकफीफी, ना कोई किज़ब पर मुश्तमिल, ना कोई तौहीन अमेज़ बोला है कि भाई उन्होंने झूठ बोला है या उनकी बात। मैं कहता हूँ ये उनका इल्हाम है, ये उनकी तफसीर है, ये उसका रिजल्ट है। आप खुद बता दें 20 फरवरी 1886 के बाद किसी औरत से उनका निकाह हुआ है? पिछले नबियों पर तो झूठ ये बोल रहे हैं, मैंने तो मिर्ज़ा साहब पर कोई झूठ नहीं बोला। मिर्ज़ा साहब के तीनों अकवाल पेश किए हैं, एक उनका 20 फरवरी 1886 की इबारत पढ़ के सुनाई है, एक सुरमा चश्म आरिया में उसकी वजाहत पढ़ के सुनाई है, एक उनका इल्हाम के बारे में जो असूल है वो बयान किया है कि मुल्हिम इल्हाम के से अंदरूनी वाकफियत रखता है, इसलिए जो वो वजाहत करेगा वो काबिल कबूल होगी। इसमें मैंने कौन सा झूठ बोला है आपके मिर्ज़ा साहब पर? कौन सी गाली दी है? कौन सी तौहीन की है? तौहीन तो आप कर रहे हैं झूठ बोल बोल कर कि नूह अलैहिस्सलाम की बात, यूनुस अलैहिस्सलाम की बात, फलाने नबियों की बात। भाई आप कहो कि ये बात मिर्ज़ा साहब की ऐसे नहीं पूरी हुई, झूठी निकली है, मैं दूसरी पेश कर देता हूँ। बिक्रम व सैयबुन, एक इल्हाम है मिर्ज़ा साहब का, एक बेवा से एक कवारी से निकाह होगा। बताएं कौन सी बेवा से निकाह होगा मिर्ज़ा साहब का? दिखा दें। आप भी नबियों पर जाकर झूठ बोलना शुरू कर दो, सारे नबियों का ऐसे होता रहे। तो खुदा के लिए आप इंसाफ से काम लें। अगर आपके पास मिर्ज़ा साहब की बात का जवाब नहीं है तो सच्चे नबियों को तो गालियां ना दें, ये तो ना करें। अगर हिम्मत है तो इन बातों का जवाब दें जो आपके सामने सिंपल एक बात, कोई इसमें कोई तौहीन अमेज़ बात नहीं है, कोई गाली नहीं है, सवाल किया है कि आपकी नज़र से देख लेते हैं। हम तो आप कहते हैं जी आप मुखालिफ हैं, कभी कहते हैं आप मुनकर हैं, तो चलो ठीक है, मुखालिफ हैं मुनकर हैं, आप तो मानने वाले हैं ना। मिर्ज़ा साहब तो खुद मुल्लिम है ना, आप बयान कर दें उन्होंने क्या इसका मतलब बयान किया है, निकाल के दिखा दें। अगर आपके घर से ये बात साबित हो रही है कि मिर्ज़ा साहब ने जो बातें कही हैं वो दुरुस्त नहीं निकली, तो फिर इसमें हमारा क्या कसूर है यार? हम कोई ज्यादती कर रहे हैं, कोई गाली दे रहे हैं, चीख चाड़ा डाल दिया और ऊपर से नबियों का नाम ले लेकर तौहीन अमेज़ रवैया। बहरहाल माजरत चाहता हूँ, मैंने ज़्यादा टाइम लिया। अमर हक भाई आए हैं, कोई बात करना चाहें तो वेलकम। मैं ज़रा बिजी हूँ कांग्रेस माम भाई खैरियत से होंगे? जज़ाकल्लाह। आमिर नज़ीर भाई, मैं अदनान भाई हमारे अहमदी कादियानी दोस्त हैं। मैंने पहली बार उनकी इस कदर बौखलाहट देखी और इस कदर झुंझलाहट में उनको मैंने पाया। मैंने इससे पहले उनको नहीं पाया और उनके इस रवैये और उनके इस तर्ज ने मेरी तवज्जो कामिल तौर पर अपनी तरफ मबजूल रखी और मैं इसी शशोपंज में था कि इसके पीछे वजह क्या है। मैंने गौर से आपकी गुफ्तगू और उनकी गुफ्तगू सुनी है तो मैं समझ पा रहा हूँ कि अदनान भाई वाक़तन कई मुश्किल का शिकार थे, जिस वजह से उनको अपनी आवाज़ को बुलंद करना पड़ा और इल्ज़ामी तौर पर अंबिया की तरफ तानो तशनी के तीर बरसाने की उन्होंने कोशिश की। ये तो एक स्टीरियोटाइप किस्म का बिहेवियर था, लेकिन यही एक बात छुपी थी, वो ये कि ये तो मुसलमानों के लिए रवैया था कि शोर, ऊंची आवाज़ करना या अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अजमाइन के ऊपर ये लबो लहजा इस्तेमाल करना। वहीं जमात अहमदिया के जज्बाती अफराद को मज़ीद जज्बाती करने के लिए उन्होंने एक टेक्निक लगाई, वो ये थी कि जी आप मिर्ज़ा साहब पर, मेरे नबी पर आप झूठ बांध रहे हैं, मैं मेरे नबी पर। यकीन करें मैं बैठा था और मैं उठकर खड़ा हो गया और मेरा दिल किया कि मैं अदनान प्यारे प्यारे भाई को सलामी देता चलूं, मगर फिर थकावट की वजह से मुझे बैठना पड़ा। तो वो ये है कि इनकी इस मिर्ज़ा साहब की ईमानी और नबवी गैरत पर जो उन्होंने इज़हार किया, मैं समझता हूँ कि सीधी बात है भाई, हम मुसलमान तो बहुत पीछे हैं, हम मुसलमान बहुत पीछे हैं। अहमदी हमारा अदनान भाई इतने जज्बाती है जी, हम तो बहुत पीछे हैं। क्योंकि आप अंदाज़ा करें कि जमात अहमदिया के अदनान भाई को इस चीज़ पर तो कोई खौफ और गैरत नहीं आई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जड़ दिया झूठ, उस सोने के कंगन वाला। इन्होंने जुमला बोला कि अल्लाह के रसूल ने कहा वो सोने के कंगन पहनाए गए हैं, मुझे दिए गए हैं। किधर आई ये हदीस? कहाँ है? कौन से कोने में है? यानी आपकी प्यारे भाई गैरत सिर्फ एक, यानी आपकी एक आंख फड़कती है बाईं वाली, दूसरी दाहिनी आंख नहीं फड़कती। ये दोनों आंखें चलनी चाहिए ना, एक इशारा क्यों चल रहा है? कन्नी दोनों तरफ खानी चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज ये है, मैं तबसरे के तौर पर कहूं, साफ तौर पर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने अपनी कुतुब के अंदर वाज़ेह तौर पर यह इशारा लिखा हुआ है, चाहे वो तरियाकुल कुलूब उठाएं, अभी तो उन्होंने एक किस्सा मुका दिया ना बिक्रम व सैयब वाला। आप मुझे बताएं, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब तरियाकुल कुलूब हो
या अंजाम आथम हो या इश्तहारात हों, 1886 इब्तदाई ज़माना, अप्रैल का, मार्च का, उससे भी पुराना, बल्कि 1884 में ब्राहीन अहमदिया का आखिरी हिस्सा लिखा गया। ब्राहीन अहमदिया से ये बात शुरू हुई है, मिर्जा साहब को समझ इसकी 1886 में खुल के आई है, बात पहले ही हो चुकी थी। यानी मिर्जा साहब का एक इल्हाम है जिसको वो जिक्र करते हैं, या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्न, ये ब्राहीन अहमदिया का है। और ब्राहीन अहमदिया का आखिरी हिस्सा जो है वो 1884 के अंदर मुकम्मल हुआ है, 1884 में। 1886 यानी ठीक 2 साल बाद मिर्जा साहब को इसकी तावील समझ आई है। तो 1884 ब्राहीन अहमदिया में मिर्जा साहब को इल्हाम होता है, या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्ना, या मरियम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्ना, या अहमद उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्ना। मिर्जा साहब ने पता है क्या ताबीर की है इसकी? उन्होंने कहा यहां 3 बार ज़ौज का लफ्ज इस्तेमाल हुआ इल्हाम में, इसका मतलब है 3 शादियां होंगी मेरी, 3 शादियां, ये मिर्जा साहब ने कहा है, क्योंकि वो कहते हैं यहां पर 3 बार ज़ौज आया है। अब मुझे बताएं, यहां पर 3 बार ज़ौज का वर्ड आया है, ज़ौज कहते हैं बीवी को। एक तो ये चीज है कि 3 बार ये काम होना चाहिए, ठीक है। फजल अहमद साहब की वालदा चली गई, नुसरत जहां आई, वो तादम हयात साथ रही। एक तीसरी आनी थी, उसका आमिर नज़ीर साहब ने कहा है कि वो सैयबा यानी कि जो बेवा है वो आनी थी। सैयबा की ट्रांसलेशन मिर्जा साहब ने खुद बेवा की। अब बेवा मिर्जा साहब के निकाह में आनी चाहिए थे। एक तो नुक्ता यह है जिस तरह तवज्जो होनी चाहिए। दूसरा ये है कि जो अल हकम के एडिटर थे अपना याकूब अली अरफानी साहब, उन्होंने जो मकतूबात आमिर नज़ीर भाई इकट्ठे किए हैं, उसमें उन्होंने मिर्जा साहब ने अप्रैल, मई, जून के जो खतूत हैं, ये बेसिकली वॉल्यूम 5 बनता है, 5 का भी नंबर 2, उसकी इब्तदाई जिल्द अगर आप ओपन करेंगे पीडीएफ में आपको मिल जाएगी, तो 5, 6, 7, 8, 9 2 खतूत हैं, एक कीम नूरुद्दीन साहब को और मेरे ख्याल से कीम नूरुद्दीन साहब को, ये दोनों ही। हाँ, उसमें मिर्जा साहब ने कहा है कि आजकल मुझे कुछ 2 शख्सों ने मुझे ये मोहलत दी, ये गौर कीजिएगा, 2 अशखास ने मुझे ये मौका दिया, मुझ पर ये चीज खोली कि आप 2 शादियां कर लें, आप 2 शादियां करें। मिर्जा साहब कहते हैं मैंने इस्तिखारा किया है, तो एक तो मुझे बड़ी बेगैरत और बेइज्जत और बड़ी मोहताज नजर आई है, जिल्लत वाली औरत नजर आई है, तो उससे तो नहीं मैं करने वाला। और दूसरी की शक्ल इस्तिखारे में मुझे यह बताया गया है कि यह बड़ी बदसूरत औरत है, तो वो जो 2 ताकतों वाला बच्चा है ना, वो इससे नहीं हो सकता। यह मिर्जा साहब ने बयान किया। अब मुझे बताएं, मिर्जा साहब कहते हैं अब मुझे इशारा मिल रहा है कि मेरा तीसरा निकाह होगा, जो इशारा गैबी है, उससे वो औलाद पैदा होगी जिससे कुव्वत ईमानी बढ़ेगी और उसका नाम होगा बशीर। मिर्जा साहब कहते हैं पहले मुझे था कि वो मुबारक औलाद इनसे होगी, यानी नुसरत जहां से, जो उनकी पहली वाइफ थी, इनसे पहले, पेशगोई से पहले, ठीक है ना, यानी तीसरी से पहले होनी चाहिए, जो दूसरे नंबर पर जो है। अब मैंने देखा अदनान भाई कह रहे हैं जी वो मिर्जा साहब के बेटों की आगे बेटे शादी मुराद है, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुझे बताएं कोई हकीकत रह जाती है इस चीज की? मिर्जा साहब कह रहे हैं मुझे वो औलाद होगी, मेरी बीवी से होगी, ये पेशगोई है। फिर हुसैन बटालवी साहब का उन्होंने इशारा किया हुआ है कि वो एक पब्लिकेशंस, उनका हुसैन बटालवी साहब का चूंकि प्रेस था, उस टाइम पे प्रेस होना एक बहुत बड़ी आपका एसेट होता था मीडिया के एतबार से, तो उन्होंने कहा कि आजकल कोई इल्हाम नहीं हुआ। उन्होंने कहा जी ये हुआ है भाई, ये देख लीजिए मामला है, तो इंतजार करें। पर खुलकर उन्होंने बयान किया कि बेवा आएगी, उससे ये खूबसूरत बेटा पैदा होगा। ये कुल मिलाकर मिर्जा साहब की पेशगोई है शादी की। आमिर नज़ीर साहब, हमें उनसे है वफा की उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। रिव्यू ऑफ रिलीजन के अंदर हकीम नूरुद्दीन साहब के सामने जब मिर्जा साहब के इस जहान फानी से कूच करने पर यह एतराज किया गया ना कि मिर्जा साहब तो चल बसे, वो मोहम्मदी बेगम तो अभी तक बेवा भी नहीं हुई और उनके निकाह में भी नहीं आई, तो हकीम नूरुद्दीन साहब के अल्फाज हैं, छोटा आदमी नहीं है, हकीम नूरुद्दीन साहब अलहाज, शाही तबीब, पढ़ा लिखा आदमी, पहले खलीफा, वो कहने लगे कि मेरे ईमान में इससे रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ता, चाहे मोहम्मदी बेगम बेवा होकर मिर्जा साहब के पास आती या नहीं आती, बाहर सूरत मुझे मिर्जा साहब पे यकीन है। तो आमिर नज़ीर साहब, आप दूसरों से क्या गिला करेंगे, बताए ना जी। मिर्जा साहब 6 नुकाती एजेंडा रखते हैं कि अगर वो मेरे निकाह में नहीं आई तो मानना मैं झूठा। यार हद होगी। और फिर दुनिया की हकीकत क्या रही यार, खुदा का वास्ता, सिर्फ वर्चुअल रियलिटी दे विच रहने पे हैं, कुछ भी सच नहीं। बहुत शुक्रिया। अगर दूसरे लोग ये कहें, यहाँ टिकटॉक पर लोग ये कहें कि भाई आपके एतराज़ात सुने और हमारी जमात के लोगों के जवाबात सुने,
तो हमारा ईमान और मजबूत हो गया। अगर ये लोग ये कहें तो कोई बईद अज़ क़यास बात नहीं है। अगर हकीम नूरुद्दीन साहब की ये बात जो आपने अभी सुनाई है कि बावजूद इसके कि वो बात सराहत के साथ गलत निकली है और वो बात पूरी नहीं हुई, इसके बावजूद हकीम साहब कह रहे हैं कि मेरे ईमान में कोई खलल वाक़या नहीं हुआ, बल्कि उनको ये कहना चाहिए जिस तरह आजकल के टिकटॉक के लोग कहते हैं कि हमारा ईमान और मजबूत हुआ है। एक दिन मैंने देखा यहाँ पे टिकटॉक पे कोई बंदा कह रहा था कि आप लोगों की बातें सुनी, वो पता नहीं कह रहा था कि मैं वो ये जो था ना कसोफ खसोफ का मामला मैंने आपसे सुना, मुझे तो पता ही नहीं था पहले, वो वसीम नाम था शायद उनका, तो जब मैंने आपसे सुना तो मेरा तो ईमान और बढ़ गया। ये वही लोग हैं जो हकीम साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए कहते हैं कि हमारे ईमान में फ़र्क नहीं पड़ा बल्कि और मजबूत हुआ। मैं मादरत करता कलामी के लिए, अमर अजीज साहब अल-फजल में लिखा हुआ है बशीरुद्दीन महमूद साहब से एक बंदा मिलने आया बैत करने के लिए, तो उन्होंने उससे दरियाफ्त किया कि अहमदियत का तारुफ कहाँ से हुआ और क्यों कबूल कर रहे हो, तो कहने लगा इशाअत सुन्ना से तबलीग हुई है मुझे। तो बशीरुद्दीन साहब ने कहा कि देखो कि हुसैन बटालवी साहब इशाअत सुन्ना से हमारी तबलीग कर रहे हैं, यानी आप अंदाजा करें, इनको तो आके शुक्रिया अदा करें ना फिर महाराज जी। इससे इनके ईमान में इजाफा होता है, यानी जो ये देखते हैं अपनी आंखों से कि ये बातें सराहत के साथ गलत निकली हैं, झूठी निकली हैं, ये दावा ये करते हैं कि हमारा ईमान आगे से भी और मजबूत हो रहा है। सुभान अल्लाह। भाई आपका ईमान फिर किस बात पर है? वो आज सुबह मैंने पेश किया था एक बंदे को कि आपका ईमान जिस बात पर है वो ये है कि अक्ल का इस्तेमाल नहीं करना। तो मिर्ज़ा साहब ने लिखी हुई है बात कि अक्ल जो है ना, अक्ल का इस्तेमाल तो खुदा का इनकार करवा देता है, तो अक्ल का इस्तेमाल नहीं आपने करना। अगर आप इस नहज पर हैं कि अक्ल का इस्तेमाल नहीं करना, अक्ल को बंद करके डिब्बी में रख देना एक साइड पे, तो फिर आपका ईमान मजबूत ही होना चाहिए। फिर इसमें कौन सी दो राय है? फिर आपके ईमान में क्या खलल वाक़या होगा कि मिर्ज़ा साहब खुद इल्हाम करते हैं पेश 20 फरवरी 1886 को कि आज के बाद कई बाबरकत औरतें आएंगी तेरे घर में, और ख़ुद उसकी तफसीर करते हैं कि उन औरतों से मेरा निकाह होगा। खुद उस इल्हाम के बारे में एक असूल लोगों को बताते हैं कि असूल ये है कि मुल्हिम जो होता है, जो वो उसकी वजाहत करता है, वही काबिल कबूल होगी। किसी दूसरे बंदे की तशरीह अदनान मतलूब वगैरह की काबिल कबूल नहीं है। मेरी तशरीह है, मैं मुल्हिम हूँ, जो मैं तफसीर बयान करूँ वही माननी है आपने। उसके बावजूद वो बात झूठी निकलती है। आपका ईमान मजबूत हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, और मजबूत होना चाहिए। अगर यही आपके हालात हैं तो आपके लिए फिर दुआई की जा सकती है कि अल्लाह ताला आपको हदायत दे दे, वरना हदायत वाला मामला तो कोई नहीं, हदायत का दरवाज़ा तो आपने बंद कर लिया। और अल्लाह ताला ऐसे लोगों के लिए जो अपने दरवाजे खुद हदायत के लिए बंद कर दे, उनके लिए अल्लाह ताला कहता है ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा। ये कई बंदे पूछते हैं, कहते हैं भाई अगर अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी तो इसमें उस बंदे का क्या? भाई अल्लाह ताला उस वक्त मोहर लगाता है जब लोग इस डटाई पर उतर आते हैं, इस हद तक जिद करनी शुरू कर देते हैं कि हमारी आंखों के सामने ये हो रहा है, लेकिन हम कहते हैं हमारी आंखें झूठ बोल रही हैं, हमारे कान गलत सुन रहे हैं। ये वाकया ऐसे नहीं है। अपनी आंखों से देखकर उसको झुटलाने वालों पर अल्लाह ताला मोहर लगा देता है कि अब इनके नसीबों में हदायत नहीं, क्योंकि सच्चाई तो उन्होंने अपनी आंखों से देख ली। लेकिन ये कहते हैं कि झूठ पर हमारा ईमान और मजबूत हो गया, हम और ज्यादा मजबूती से झूठ पर कायम हो गए। तो ऐसे लोगों पर अल्लाह ताला दरवाज़ा बंद कर देता है, उनके मोहर लगा देता है कि ठीक है, अगर तुमने हदायत कबूल नहीं करनी, नवल्लही मा तवल्ला, जाओ फिर उस दिन मुलाकात होगी क़यामत के दिन। ऐसे ही अगर इस रास्ते पे चलना है तो चलते जाओ। यत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन आपने कर लिया तो फिर जाओ, क़यामत के दिन आपसे मुलाकात होगी। तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला उनके लिए दरवाजे बंद कर देता है, क्योंकि वो खुद दरवाज़ा बंद करते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद कसम खाई है कि हमने सच को देखकर झुटलाया और झूठ को देखकर कहा हमारा ईमान मजबूत हो गया है इस झूठ को देखकर। तो वो हैं लोग जिनके नसीबों में फिर हदायत नहीं होती है। साहब आपसे सवाल है कि आप भाई ये जरा स्क्रीन बड़ी करिएगा, एक मिनट भाई, एक मिनट भाई, उपनाइज भाई ये जरा स्क्रीन अगर आप बड़ी कर सकें। एक मिनट जरा साहब, एक मिनट हमारे भाई को बात आप आधे घंटे से बात कर रहे हो। ये देखिए जी, ये मकतूबात अहमदिया है जो मैंने बताया, जिल्द पंजम का नंबर 2 है, 5 है। ये अल हकम के जो एडिटर है ना, अल हकम के मिर्ज़ा साहब के सहाबी याकूब अरफानी साहब, उन्होंने ये ख़त मेंशन किया है जो हकीम नूरुद्दीन साहब को लिखा गया। उसमें क्या लिखते हैं? कहते हैं अब तक मेरा, सफ़ा 5 आ गया जी, अब तक मेरा क़यासी तौर पर ख्याल ये था कि शायद ये वो फर्जंद मुबारक
इसी अहलिया से होगा। किनसे? नुसरत जहां बेगम साहिबा से। अब ज्यादातर इल्हाम, यानी ये क्यास था पहला, इल्हाम क्या कह रहा है? अब ज्यादातर इल्हाम इस बात में हो रहे हैं कि अनकरीब एक और निकाह तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें। और जनाबे इलाही में यह बात करार पा चुकी है कि एक पारसा तबा और नेक सीरत अहलिया तुम्हें अता होगी, अहलिया तुम्हें, बेटे को नहीं, और वो साहिब औलाद होगी। ठीक है जी। आगे फिर उनको फलों के सूरत में इल्हाम ये दिखाया गया। ठीक अब है, ये क्यास तो पीछे रहा ही नहीं, यहाँ पर तो इल्हाम आ गए हैं और कई इल्हाम हुए हैं। क्यास तो खत्म हो गया। अगर क्यास से कोई करे बात तो आप कह सकते हैं कि क्यास गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। वो तो कहते हैं पहले ख्याल था, क्यास था, लेकिन अब ज्यादातर इल्हाम हो रहे हैं। इल्हामों की शक्ल में अल्लाह ताला से खबरें आ रही हैं कि तुम्हारा निकाह होगा, निकाह होगा। कहाँ हुआ निकाह? कोई भी नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया जी। मजीद आगे बात चलती है तो बात होगी जी। सैफी साहब करें सवाल। किससे करना है? मुझसे करना है, अमरक भाई से करना है? ये दावा है कि आप हिदायत याफ्ता हैं। सवाल आपका किससे, मेरे से या आपसे सवाल है ना, आपने बोला है कि अल्लाह जो है वो भाई आपने ब्रेक लेनी है, आप ब्रेक ले लें, मैं देख लेता हूँ। हाँ ठीक है। आपसे सवाल है कि आप हिदायत याफ्ता हैं अमर साहब? जी सर, सैफी भाई वो मेरे ख्याल से ब्रेक पे हैं, मुझसे सवाल कर लें। क्या सवाल है जी? जी वो टॉपिक पे बात कर रहे थे कि वो हिदायत याफ्ता है ना, तो मैं पूछ रहा था कि ये इनका ये दावा है कि ये हिदायत याफ्ता है। जी अच्छा, ये जो पेशगोई पर बात हो रही है इस पर आप बात नहीं करेंगे सभी भाई? पेशगोई पे बात, आप पेशगोई पे बात करना चाहते हैं? हाँ जी, उसी पे चल रही है मौजूद। तो ये है मेरे ख्याल से शायद तो ज्यादा बेहतर तो होता ये था, लेकिन वो बार बार कह रहे थे कि मैं हिदायत याफ्ता हूँ या अल्लाह मियां दिलों पे वो तो ब्रेक लगा पे देते हैं, हैं। वो बताएंगे। ये पेशगोई के हवाले से बता दें कि मैं आया था, वो ब्रेक पे चले गए तरियाकुल हैं, कुलूब तो रूहानी बात कैसे खजान होगी? वॉल्यूम 15 पेज 201 के ऊपर जो पेशगोई की गई है उस पे क्या कहते हम हैं? साहब, आमिर हक साहब, मैंने कहा मैं आया हूँ, तो वो ब्रेक पे चले गए हैं आमिर जी। वॉल्यूम 15 पेज 287 से शुरू होता है और बल्कि 201 पर दिख रहा है पहले हाशिए में तरियाकुल कुलूब। अच्छा जी प्लीज सैफी भाई वजाहत कर दें। जज़ाकल्लाह। क्या वजाहत कर दी है जी आप? एक चले ठीक है, मैं ना मैं भी वजाहत करता हूँ, फिर आपने भी वजाहत करनी है। ठीक है ठीक है जी, मैं ठीक आपके है, सामने कुछ एक हदीस पेश करूंगा, आपने मुझे उसकी वजाहत करनी है। बिल्कुल। मैं जैसे ही मौजू ये सम अप होता है इंशाल्लाह मैं आपके साथ उस पर बात ठीक करूंगा। है, जैसे पहले मैं रखता हूँ आपके सामने हदीस, आप उसकी जी वजाहत। क्या हुआ जी, क्या करेंगे पहले आप? मैंने कहा मैं आपके सामने एक हदीस रखता हूँ, उसकी वजाहत करते हैं। यानी ये जो मौजू चल रहा था उसका क्या करें? तो हदीस आपके लिए मुकद्दम है ज्यादा, ये मौजू मुकद्दम है? यानी अच्छा, यानी जो मौजू पहले यानी सब कुछ खत्म कर दिया जाए और आप किसी, यानी चले ऐसा कर आसान करते हैं भाई। तो यही है, आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं है। किस सवाल का? जो मैंने पूछा है, आप कैसे जो टॉपिक चल रहा मेरे था। पास इस अच्छा सवाल आपने का जवाब नहीं है। क्योंकि आप उस टॉपिक, आप कब से ब्रॉड देख नहीं, रहे हैं? आप कैसे आप कह सकते हैं कि मेरे पास इस सवाल ब्रॉड कब से देख रहे हैं प्यारे भैया? भाई मैंने अभी देखी जब अमर नजीर साहब कह रहे थे कि मैं हिदायत याफ्ता हूँ। ठीक है, यानी आपको नहीं पता कि मौजू क्या चल रहा था? मैंने आपने बता दिया ना किसी इल्हाम पे आप बात करना चाहते हैं, किस हाँ किस हाँ जो ब्रॉड की बात चल रही थी आपके पास उस चीज का नॉलेज है, ऐसा ही है? मुझसे ब्रॉड जो है ये उसी बात पे चलेगी, आज कोई और बात नहीं हो सकेगी यहाँ पे। नहीं टॉपिक मैं ओपन आइज साहब से पूछ लेता हूँ, अगर वो कहते हैं कि नहीं भाई आप टॉपिक चेंज कर दें, वो टॉपिक नहीं होगा, कोई और टॉपिक पे बात होगी। मैं ठीक है, वरना जो टॉपिक है ना मैं आपको बात सुने ना। अब अब आमिर नजीर साहब जो थे वो कुरान की आयत पढ़ रहे थे और वो कह रहे थे मोहरें लग गई, मैं हिदायत याफ्ता हूँ, तो मैं तो उनसे सवाल कर रहा था कि आपका ये दावा है? वो जब आते हैं सैफी भाई ऐसा करते हैं, वो जब आते हैं इसी टॉपिक पे बात करने आया था। अच्छा, यानी आपके पास आप जो मेन टॉपिक चल रहा था उस पे आपके पास बात नहीं है? नहीं, उस पे भी कर लेंगे बात, लेकिन आप चले मैं आपके सामने रखता हूँ। सैफी भाई तवज्जो कीजिएगा, सैफी प्यारे भाई तवज्जो कीजिएगा, मौजू में क्रक्स निकाल दूं आपके सामने। सिलसिला जमात अहमदिया के बानी जहानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब जो हैं, उन्होंने हम इस्लाम के बानी या सहाब या हदीस या कुरान पे नहीं बात कर सकते? इस्लाम के कमाल बात यह है कि आप मुझे बता दें, आपके मिर्जा साहब पे बात नहीं करनी आपने, तो मैं उस पे आ रहा हूं कि हम जैसे मेरा तो एक बड़ा कैनवस होता है, मैं तो चाहता हूँ हम 1,24,000 पैगंबरों पे बात करें। ठीक है, जबरदस्त उम्मुल मोमिनीन पे बात करें, चलें ऐसा